Let us study accountancy with Poonam Makhija. Students, today we are taking the topic of reconstitution of partnership, and in that we are taking the change in profit sharing ratio and goodwill. Basically, the theory of goodwill will be there. In the practical part, we will do in the next video. Now, the meaning of reconstitution. Have you ever heard the term reconstitution? Reconstitution. Reconstitution. Re means again. Constitution means form. It means in the partnership firm, we are forming the firm again. Now, how we can form? The business is continue, but the agreement changes. Agreement changes. For example, there are three partners A, B, C. They are doing the business of partnership firm and they agree to share the profits equally. That is 1:1:1. After some time, there may be a situation that A demand for salary, A demand for higher profit due to more involvement, and all are agreed for that. It means they can change their profit sharing ratio. Or there may be a situation that A wants to introduce his daughter or his friend into the business. It means he want to add one more partner. In that situation, there will be again the agreement will change. There may be one more situation that B decides to retire from business. He leave the business, then also there may be a change, and due to death of C, there may be a change. It means at any time the partners can change their agreement, and whenever there is a change in between the agreement, there will be a reconstitution. Reconstitution means again forming the new agreement. That is the term here, reconstitution of partnership firm. Now come on the theory, that this one reconstitution. As we know, this is a theoretical part. The partnership is the result of agreement between the persons for sharing the profits of the business. Any change in the partnership agreement brings to an end of the existing agreement. Existing agreement means जो पहले agreement था वो ख़त्म हो जाता है और एक नया agreement form करते हैं, that the new agreement comes into force. The change in agreement results in change in the relationship among all the members. Ratio change हो जाएगी, it means उनके results different होंगे. In such case, although the firm continues, जैसे मैंने पहले कहा था कि firm continue रहती है, business continue रहता है, it amounts to reconstitution of the partnership firm. And these are the situation. Number 1, change in profit sharing ratio among the existing members, that they decided to change their profit sharing ratio. The second one, there may be admission of any new partner. New partner may be added.
There may be a retirement of the existing partner. There may be a death of any partner. And this is a new one, amalgamation or merger of any two firms. There may be the situation that two firms decided to join their business together and they will form combined business. In this way they will eliminate the competition among themselves. In this way they can, like XY firm is there, PQ farm is there, both decided to amalgamate each other, so it will be XY PQ, and their profit sharing ratio will be decided among them. Next is change in profit sharing ratio is the today's topic we are having here. Change in the profit sharing ratio means that they decided to change their एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, इक्वली से उसने अपना शेयर बढ़ा दिया. द चेंज इज नेसेसिटेटेड ड्यू टू चेंज इन द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. रीजन मे बी ए कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट. As a result, change in profit sharing ratio, one or two or existing members may acquire extra share in the profits at the cost of one or more of the partners. ठीक है, अगर एक पार्टनर एक्वायर करेगा तो डेफिनेटली द सेकेंड पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको. In such a case, in order to maintain equity among the members or the partners, it is necessary to make the adjustment. अब एक पार्टनर की रेशियो चेंज हो गई तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. किस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? गुडविल में, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, रिजर्व्स में, accumulated profits and losses. These adjustments are similar to those at the time of admission. ठीक है, अब ये क्या एडजस्टमेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और इसको हम करेंगे डिटेल में. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि व्हाट आर द मेन एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड. हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट्स को करना है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ करना है, एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. दीज आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है? एज द नेम सेज, सेक्रीफाइस का मीनिंग क्या होता है? टू सेक्रीफाइस टू समवन. इट मीन्स किसी को कुछ देना. तो एक पार्टनर देगा तभी दूसरा पार्टनर रिसीव करेगा. तो हम दोनों रेशो कैलकुलेट करेंगे, सेक्रीफाइस रेशो भी और गेनिंग रेशो भी. Whenever there is a change in the profit sharing ratio, one or more of the existing partner have to surrender some of their old share in favor of one or more of the other partners. This ratio of surrender of profit sharing ratio is known as sacrifice ratio. ये रेशो का मीनिंग आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है. समटाइम्स वन मार्कर थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए सेक्रीफाइस रेशो. दिस इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं गेनिंग रेशो. अगर एक पर्सन सेक्रीफाइस करेगा तो दूसरा गेन भी करेगा. तो ये क्या है? वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर gain some portion of the other partner's share profit. The ratio of gain of profit sharing ratio is known as gaining ratio. This is equal to new ratio minus old ratio. Right? तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा, सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो फॉर ईच पर्सन. नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल. अब गुडविल आपने नाम सुना होगा, एज द नेम सेज गुडविल. Goodwill means reputation of the firm through the hard work and honesty of the owners. आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर शॉप पर जाते हैं. आप डिनर के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो यू लुक फॉर द 5 स्टार होटल.
क्यों 5 स्टार होटल? वाई नॉट द नियरेस्ट वन टू योर होम? क्योंकि वहाँ की एक रेपुटेशन है, एक नाम है। वो नाम कैसे बना है? वो नाम बना है उसकी बेटर सर्विस से, गुड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। उसने एक अच्छी सर्विस कस्टमर्स को दी है। एंड द कस्टमर्स हु फील सेटिस्फाइड will come again and again, and the firm will be able to earn more profits in future. आप एक बिजनेस से प्रोडक्ट बाय करते हैं, उससे सेटिस्फाई होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी वहीं जाते हैं, वही कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं। आप एक प्रोडक्ट लेते हैं, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो नेक्स्ट टाइम नहीं जाते। इट मीन्स जहाँ पर कस्टमर रिटेन होता है, जहाँ पर कस्टमर अगेन एंड अगेन विजिट करता है, तो वो बिजनेस ऑन करता है गुडविल को। और डेफिनेशन में हम कह सकते हैं द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शंस एंड रेपुटेशन। कि बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी हो गई तो कस्टमर उसके पास बार बार आ रहे हैं, और जब कस्टमर उसके पास बार बार आ रहे हैं तो उसको प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे। इसको डिटेल में हम स्टडी करते हैं गुडविल को। तो मीनिंग ऑफ गुडविल क्या है? That over a period of business, a well-established business develops an advantage of good name, reputation, and wide business connections. This helps the business to earn. This is the main point here कि उसके जो कनेक्शंस हैं, उसकी जो रेपुटेशन है, वो उसको हेल्प कर रही है टू अर्न द मोर प्रॉफिट्स एज कम्पेयर टू द न्यूली सेटअप बिजनेस। यानी कि वो बिजनेस जो पहले से सेटअप है दैट विल अर्न मोर प्रॉफिट्स। और इसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं, इट इज़ एन इंटेंजिबल आसेट। इंटेंजिबल आसेट मीन्स विच गिव्स अस द बेनिफिट। तो ये वो एसेट है जो हमें बेनिफिट देती है, बट इंटेंजिबल फॉर्म में है, इट डजेंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। So in other words, goodwill is the value of reputation of the firm in respect of profits expected in future over and above the normal profit. अगर किसी भी बिजनेस को एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, तो उसकी गुडविल नहीं होगी। जहाँ पर एक्सपेक्टेशन टू अर्न मोर प्रॉफिट है, उन्हीं की ही गुडविल है, राइट? When a person pay for the goodwill, then he or she pays for this one. ठीक है। नेक्स्ट है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि किस बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी और किस बिजनेस की गुडविल कम होगी, ये किस पर डिपेंड करता है? नंबर 1, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर, वो किस टाइप का प्रोडक्ट दे रहे हैं हमें। A firm that produces high value added products or having a stable demand is able to earn more profits and therefore has more goodwill. जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड स्टेबल है, always the people will buy the product, it will have more goodwill. Next, location. If a business is centrally located means center of the city में है, more and more people can visit. जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक स्टेट है या एक सिटी है, तो उसके सेंटर में वो बिजनेस है, तो every person can visit here. तो जब ज़्यादा कस्टमर वहाँ विजिट करेंगे तो वहाँ पर गुडविल हमारी ज़्यादा होगी. इट इज़ ए प्लेस हैविंग हैवी कस्टमर ट्रैफिक, द गुडविल टेंड्स टू बी हाई. नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. अब हमने कहा कि गुडविल किस पर डिपेंड करती है? अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, कि जो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं उसी से ही हमारी गुडविल या रेपुटेशन बनती है. तो जिस मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बेटर होगी, दे विल एंजॉय मोर गुडविल. नेक्स्ट हम ले रहे हैं मार्केट सिचुएशन. मार्केट सिचुएशन मीन्स कि इफ़ देयर इज़ ए मोनोपोली कंडीशन, कि मोनोपोली है और कोई है ही नहीं सेलर, या लिमिटेड कंपटीशन है, तो वहाँ पर दे विल हैव हाई प्रॉफिट्स.
एंड विल लीड टू हायर गुडविल। जहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है तो उन्हीं का ही प्रोडक्ट सेल होना है, उनका प्रोडक्ट सेल होना है तो प्रॉफिट उन्हीं को ज़्यादा मिलेगा, इट विल हैव मोर गुडविल। नेक्स्ट, द स्पेशल एडवांटेजेस। द फर्म दैट एन्जॉय स्पेशल एडवांटेजेस लाइक इम्पोर्ट लाइसेंस। अब जिसको इम्पोर्ट लाइसेंस मिला है वही इम्पोर्ट कर सकता है, वही इम्पोर्ट कर सकता है तो वही सेल करेगा, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। लो रेट एंड एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द गुडविल। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, आपका 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 5 ईयर के लिए आपको परमिशन मिल गई सप्लाई ऑफ मटेरियल के लिए, तो आप उस प्रोडक्ट को सप्लाई करते रहेंगे, देन यू विल हैव मोर गुडविल। वेल नोन कोलैबोरेटर्स, जैसे ATM मशीन्स है तो आपके वेल नोन कोलैबोरेटर है, यू विल हैव मोर गुडविल। देन पेटेंट्स, राइट्स, ट्रेडमार्क्स also enjoy a higher value of goodwill. So these are the factors which affect the value of goodwill. Next हम ले रहे हैं need for valuation of goodwill, कि ज़रूरत क्यों है हमें गुडविल को वैल्यू करेगी। मेरा एक बिजनेस है, से मेरे घर के पास में हल्दीराम है, हल्दीराम का बिजनेस एक रेप्यूटेड बिजनेस है, चल रहा है, उसको क्या ज़रूरत है ये देखने की कि उसकी गुडविल कितनी है। एज्यूम करिए कि वो डिसाइड करता है कि वो अपने आउटलेट को सेल कर देगा, राइट। अगर उसको सेल करना है तो क्या उतने ही वैल्यू में सेल करेगा जितनी की एसेट्स उसके पास हैं? नो, he will charge more than the available assets in the business। तो वो ज़्यादा जो चार्ज करेगा वो किसके लिए करेगा? गुडविल के लिए करेगा। तो उसको वैल्यू करना होगा कि उस डेट में उसकी कितना गुडविल है। तो जनरली हमें गुडविल की ज़रूरत होती है जब भी हम बिज़नेस को सेल करते हैं। और हमारी क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर्स ने रेशो चेंज कर दी। अब एज्यूम करते हैं ABC पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब 2:1:1 में कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि इस टाइम तक जो उन्होंने बिजनेस किया उसका बेनिफिट उनको किस में मिलना चाहिए? 1:1:1 की रेशो में। उसके बाद का किस में मिलना चाहिए? 2:1:1 की रेशो में। तो ये गुडविल तो जनरेट होती रहेगी ना, तो फिर दे वांट, अगर वो इस रेशो में डिवाइड करेंगे तो पहले वाला जो 1:1:1 है उससे क्या होगा कि C को और B को लॉस हो जाएगा और A को फ़ायदा हो जाएगा। तो ये B और C ये करने नहीं देंगे, इसलिए वो क्या कहेंगे कि इस डेट तक की जो गुडविल हमने अर्न किया वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद जो गुडविल होगी वो 2:1:1 की रेशो में जाएगी। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मान लेते हैं D ने एंट्री करी, D ने एंट्री करी, रेशो हो गई 1:1:1:1। अब D भी शेयर कर रहा है, जब D भी शेयर कर रहा है तो उस केस में D को भी गुडविल मिलेगी, जबकि D ने तो कुछ भी नहीं करा। तो वो क्या चाहेंगे कि एडमिशन के टाइम में जितना भी गुडविल है वो ABC ले लें, ताकि D को उसका बेनिफिट ना मिले, और अगर D को उसका बेनिफिट मिलेगा तो D को अपना शेयर लेकर आना पड़ेगा। तो D जब भी एडमिशन लेगा वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगा, बिकॉज ही विल बी रेसिपिएंट ऑफ द गुडविल विच इज अर्न्ड बाय A, B एंड C। नेक्स्ट है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। किसी भी पर्सन की रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है तो वो जो बिज़नेस छोड़कर जाता है तो उस डेट तक उन्होंने जितना भी गुडविल अर्न किया है उसका शेयर वो डिमांड करते हैं कि उनको दे दिया जाए। तो इसलिए हम उसका वैल्यूएशन करते हैं कि उस डेट तक उन्होंने कितना गुडविल को अर्न किया है। नेक्स्ट है एमलगमेशन और मर्जर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर हम बिज़नेस को मर्ज कर रहे हैं या एमलगमेट कर रहे हैं तो उस केस में भी हमें गुडविल ऑफ वैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन की हमारी जो गुडविल है उसकी कैटेगरीज कितनी हैं। बेसिकली हमारी 2 कैटेगरीज हैं, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल का मतलब
वो गुडविल जिसके लिए हमने खर्च किया है, जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं, वो हमारी परचेज गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड मीन्स जो हमने अर्न किए हैं बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग आवर ओन सर्विसेज, तो ये हमारी सेल्फ जनरेटेड होती है। जैसे हल्दीराम बिजनेस चल रहा है, सालों से चल रहा है, तो उनकी जो गुडविल है वो क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। तो परचेज गुडविल हम लेते हैं। द परचेज गुडविल इज अ गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग ए पेमेंट, क्लियर, बाय मेकिंग ए पेमेंट, यहाँ पर हमने पे किया है। When a business is purchased, the excess of purchase consideration over its net worth, जैसे मैंने कहा था कि वो उतना नहीं चार्ज करेगा जितना उसकी नेट वर्थ है, उससे ज़्यादा चार्ज करेगा, तो उसकी ज़्यादा चार्ज के लिए जितना अमाउंट हम पे करेंगे वो हमारी क्या होगी, परचेज गुडविल होगी। अब इसमें क्या है, ये कब होगी, जब हम बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। सेकंड, बुक्स में रिकॉर्ड होगी बिकॉज वी आर मेकिंग द पेमेंट फॉर दिस वन। बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो भी होगी, और ये हमारी एमोर्टाइज्ड होगी ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड, वो गुडविल जो हमने अर्न किया है, इनहेरिट है। इट इज़ द गुडविल विच इज़ जनरेटेड or which arises from a number of characteristics of the or the attributes which are an ongoing business process, जो बिजनेस हमारा चल रहा है उसकी वजह से वो गुडविल हमारी जनरेट हो रही है। तो ये गुडविल जनरेट होगी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज़ नॉट कि 1 महीने में या 2 महीने में गुडविल बन जाएगी, इसको बनने में सालों लग जाते हैं। द सेकेंड, ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड। अब वो गुडविल, मेरे पास जो कस्टमर आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है वो मुझे नहीं मालूम, देयर मे बी डिफरेंट रीजंस, सो इसीलिए हम इसकी एग्जैक्ट या ट्रू कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वी कैन वैल्यू इट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट्स ऑफ द वैल्यूअर। द नेक्स्ट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, it is intangible asset and it is not recorded in the books, हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं because consideration in money or money's worth has not been paid for it, कि हमने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया, इसलिए हम इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ गुडविल। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में हमारे पास बेसिकली 3 मेथड हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब जैसे नेम क्लियर है, फर्स्ट लेते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट हमें मालूम है कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू total profit divided by number of years। एवरेज प्रॉफिट हमने 11th में भी किया हुआ है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। अब ये हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो गुडविल है ये कितने ईयर की परचेज पर हम इसको एज्यूम करेंगे। तो हम लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें लेना है। अब यहाँ पर हमारा एक स्टार पॉइंट है। स्टार पॉइंट क्या कहता है कि जो मुझे प्रॉफिट लेना है वो मेरे बिजनेस का एक नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। अगर इसमें कोई एबनॉर्मल कंपोनेंट है तो वो मुझे यहाँ से हटाना है। अब वो एबनॉर्मल कंपोनेंट मेरा यहाँ पर क्या है, अगर कोई लॉस है जो एबनॉर्मल है उसको एडजस्ट करना है,
और अगर कोई प्रॉफिट है वो भी अब नॉर्मल है, वो मुझे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो लॉस या प्रॉफिट जो मेरे रूटीन में नहीं है, जो कभी कभी हो जाता है, अगर ऐसा कोई उस ईयर में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, वो एडजस्ट होगा। अगर लॉस हुआ है तो मुझे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, और प्रॉफिट हुआ है अब नॉर्मल तो रिड्यूस करना है। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ रीअकरिंग एक्सपेंसेस या इनकम्स भी हो सकती हैं, उसको भी मुझे एडजस्ट करना है। मेन यहाँ पर मेरे पास पर्पस क्या है कि मेरे पास जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल रूटीन से अर्न होना चाहिए, उसमें एबनॉर्मल कंपोनेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं तो सुपर का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा, यानी कि मेरे बिजनेस ने कुछ अच्छा अर्न किया, कुछ एक्स्ट्रा अर्न किया, तो वो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर के लिए तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक एवरेज प्रॉफिट जो मेरे बिजनेस में है, या एक्चुअल प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट। सेकंड मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग क्या है कि अगर वो मेरा बिजनेस नहीं है, कोई और बिजनेस है, अगर वो कैपिटल लगाता है तो वो कितना अर्न करता है, तो ये मेरा निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितना है उस बिजनेस की। अब ये परसेंटेज में गिवन होगी तो डिवाइडेड बाय 100 भी आएगा, तो ये मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अब इससे मैं सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ। अब ये सुपर प्रॉफिट मेरा किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब गुडविल किसके बराबर हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी मेरी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस वे में हम निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से भी अपना गुडविल का कैलकुलेशन। थर्ड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन, अब ये कैपिटलाइजेशन जो मेथड है ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 ऑफ एवरेज प्रॉफिट और नंबर 2 सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में मुझे 2 चीज़ें निकालनी हैं, CV एंड CI। CV है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट लेना है मुझे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब CI है मेरे पास कैपिटल इन्वेस्टेड। अब ये किसके बराबर होती है, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज हम कर सकते हैं, या फिर हम कैपिटल प्लस रिजर्व प्रॉफिट्स एंड माइनस लॉसेस ये कर सकते हैं। तो इस वे में हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, और गुडविल मेरी होगी CV माइनस CI। तो बहुत आसान है इस मेथड से निकालना। और नेक्स्ट है मेरा कैपिटलाइजेशन ऑफ
सुपर प्रॉफिट। अब इसमें गुडविल निकालना और ज़्यादा आसान है। गुडविल इज़ इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारे पास मेथड्स हैं गुडविल के कैलकुलेशन के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो टिल देन बाय। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।